Hello, my dear students. Today we will start chapter 8, that is algorithm and flowchart. So, in this chapter, we will learn what is algorithm and flowchart. Students, in our daily life, we carry out certain steps in sequential order to perform a task or to get a desired output. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं और उससे हम अपना काम पूरा करते हैं, कोई भी टास्क पूरा करते हैं. ओके, जैसे वी यूज़ टू ब्रश आवर टीथ एंड वी पैक आवर स्कूल बैग, वी पैक आवर traveling bag when we go outside, we calculate few things. Algorithm is a set of sequential steps to solve any logical or mathematical problem. Algorithm is always written in simple language and precise manner so that everyone can understand the steps. So algorithm एक सेट है सीक्वेंशियल स्टेप्स का जो कोई भी प्रॉब्लम्स, वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है. स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें करते हैं और फिर हमको एक डिज़ायर्ड आउटपुट या उसका सोल्यूशन मिलता है. एल्गोरिथम हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है एंड जो बहुत प्रिसाइज मैनर में होती है ताकि whosoever is reading that can easily understand the steps that are written. Okay, we will take an example of algorithm. So algorithm to set a school bag. हम स्कूल जाते हैं, उसके लिए जो steps हम follow करते हैं, that is also algorithm. So step 1 is open the bag, then take out your school diary, then see the timetable, go to your bookshelf, take out the books and notebooks. You will take out the books and notebooks according to your timetable that you have seen from the school diary. Next is keep them in a bag according to timetable. Those books you have taken out, you can keep them in a bag and after that close the bag. So these are the steps. कोई भी चीज़ें, ये स्टेप्स हैं, कोई भी चीज़ें आप पहले या बाद में नहीं कर सकते. आप सीधे पहले बुक्स कोई भी उठा के नहीं रख सकते. ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसेस चलता है, दैट इज एल्गोरिथम. फाइन. वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल टू कैलकुलेट सम और टू टेक एन एवरेज ऑफ any 3 or 4 numbers. Next is flow chart. A flow chart is a pictorial representation of steps or an algorithm used for solving a particular problem. So, flowchart is also similar to algorithm, but in algorithm we just write steps, but in flowchart all the steps or algorithm is in a pictorial form. सारी चीज़ें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती हैं जो easy to understand होती हैं. Okay, to create a flowchart, different boxes are used which are connected to each other with the help of flow lines. So when we are creating a flowchart, various boxes are there. So and that boxes are connected to each other with the help of flow lines. जो डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं वो फ्लो लाइन की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ये फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप्स का और एल्गोरिथम का. सो दीज आर द डिफरेंट बॉक्सेस वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस देयर फंक्शन. फर्स्ट वन इज स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. इट इज़ यूज्ड इन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट. जब भी हम कोई फ्लो चार्ट शुरू कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं, देन वी विल यूज दिस बॉक्स. नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट बॉक्स. सो दिस बॉक्स इज यूज फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट एंड गिविंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. सो ये जो इनपुट आउटपुट बॉक्स है वो
इनपुट एक्सेप्ट करता है और आउटपुट देता है. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, दैट इज प्रोसेसिंग बॉक्स. ये जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी चीज़ें लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं उसको प्रोसेस करता है. ओके. नेक्स्ट वन इज डिसीजन और कंडीशन बॉक्स. इट इज़ यूज फॉर चेकिंग or applying any condition in a program. Next one is flow lines. These are the flow lines that helps in connecting the various boxes. Okay. And last one is connectors. These are used to connect one part of flowchart to the another. Okay, now we will take an example, and here we are making tea. So process of preparing tea. First of all we have taken start and stop box. जहाँ हमने स्टार्ट किया देन हम इनपुट बॉक्स पे गए, उसमें हमने लिखा टेक अ पैन वाटर शुगर टी लीव्स एंड मिल्क. तो हमने वो इनपुट बॉक्स में हमने लिखा. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग बॉक्स. प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या क्या किया हमने, पुट द पैन ऑन गैस बर्नर एंड pour water in it. दोबारा से प्रोसेसिंग, स्विच ऑन द गैस, फिर एक और बार प्रोसेसिंग की. पुट some tea leaves when water boils. Again same thing we will do on processing box. Put some sugar and add milk also. After processing take off the pan and turn off the gas. So this much 5 steps we have done in processing box. So after that सेकेंड लास्ट इज आउटपुट बॉक्स. आउटपुट बॉक्स में हमने क्या किया, एक कप में चाय को छान ली. नेक्स्ट लास्ट इज स्टॉप, तो वो स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स में आ गया. फाइन. सो अनदर एग्जाम्पल वी विल टेक. इसमें हमने क्या किया है, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये एग्जाम्पल हमने लिया है. इसमें भी सिमिलर, पहले हमने स्टार्ट स्टॉप बॉक्स लिया, फिर हमने इनपुट बॉक्स लिया, देन उसका प्रोसेस किया, देन आउटपुट बॉक्स में उसका डिस्प्ले आया. अगेन डिफरेंस में हमने फर्स्ट में प्रोसेसिंग में डिफरेंस लिखा, देन उसमें आउटपुट बॉक्स में उसका रिजल्ट आया. ओके. फिर हमने प्रोडक्ट किया एंड आउटपुट बॉक्स में उसका रिजल्ट आया. आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी हैव just ended the program or flowchart. So for that we have used stop box. I hope students now you have understand algorithm and flowchart.